So tuberculosis therapy, drug treatment of your tuberculosis. Before that, you should know what is meant by tuberculosis. So it is infectious disease caused by several form of mycobacterium. That is a mycobacterium tuberculosis, mycobacterium bovis. So this disease was also described in the our ancient literature known as Vedas and Charka and Surya. It is known as a king of disease in our ancient literature. So this tuberculosis was named after the discovery of this organism, discovery of positive organism. So in the 1882, Robert Cook was discovered the tubercular bacilli, and then after that the tuberculosis was the name given to this disease. So now this mycobacterium tuberculosis is typically have a low virulence that can cause chronic disease, that causes chronic disease, and usually it is a resistant to therapy. The disease spread by droplet infection, remember, and these droplets from infected pulmonary and laryngeal of TB patients. जिसको TB है उसका laryngeal and pulmonary infection है, तो वो transmit होता है during sneezing, coughing, sneezing, then even by simply talking. Because of small size of droplet and bacteria, it remains airborne for few hours, and TB is difficult to, because the tubercular bacilli will grow slowly. It is difficult to treat because the bacilli causative organism will grow slowly, will divide only once in a 1 or 2 days. एक दो दिन में एक ही बार डिवाइड होता है वो, even in the most favorable condition, and in the less favorable condition they become metabolically dormant, known as a persist. And those patient who has a persist form of this bacilli, they are known as a persisters. Only rifampicin is useful, or it is effective in case of persisters. Other drugs are not useful. The cassation and fibrosis. Cassation means what? I have told you, bacilli will infect your cell. The cell will try to eliminate that bacilli, but at that time the bacilli will become more dominant over the our body defense system, and the cell will die, and cell will form a fibrous mass. Okay, fibrous mass, which is a white or milky in color. That's why known as a cassation and fibrosis. This fibrosis and cassation result in the blockage of blood to that particular cell or tissue, and that because of blockage of blood to that particular tissue, drug cannot penetrate in that tissue, so less permeable. So fibrosis and cassation in the cells or tissue blocks the blood vessel supplying to the necrotic area, resulting to less permeability of drug. Again, these HIV patients, which those patients which have HIV, already they are immunocompromised, they have less count of CD4 cells and lymphocytes, so that's why they are more vulnerable for the severe form of mycobacterium avium complex and tuberculosis. जो भी पेशेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनके इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करने के बाद, केमोथेरेपी देने के बाद, वो पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है. और HIV पेशेंट में तो ऑलरेडी CD4 सेल जो है लिम्फोसाइट्स, वो उसका काउंट कम होता है, तो दे आर द मोस्ट वनरेबल पेशेंट. जिसको एड्स है, जिसको HIV है, उसको टीबी का इन्फेक्शन 100% होता है. सो ट्यूबरकुलर बैसिलाई रिमेन्स वाइबल एंड मल्टीप्लाई इवन व्हेन इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस. जो आपका मैक्रोफेजेस होता है, जो WBC, उसमें उसको फैगोसाइट भी किया, फिर भी वो जिंदा रहता है ट्यूबरकुलर बैसिलाई. एक्सेप्ट INH, isoniazide, rifampicin and pyrazinamide. These are the three drugs which can penetrate into macrophages, and they can destroy the other drugs are not other drugs cannot penetrate the macrophages. So macrophages में सिर्फ isoniazide जाता है, rifampicin जाता है, pyrazinamide. Clinical mycobacterium infection. Clinical mycobacterium infection develops 2 to 8 weeks after the infection. Okay, the most infected patient organism develop resistant to the chemotherapeutic agent. क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो इमीडिएटली आपको पता नहीं चलता कि मेरे को इन्फेक्शन हुआ है टीबी का. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, मतलब आपको कब पता चलेगा आपको इन्फेक्शन हो गया है? 2 to 8 weeks आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर और आफ्टर द इन्फेक्शन. मतलब आज अगर आप कोरोना के वायरस के पेशेंट के संपर्क में आए तो आपको इन्फेक्शन आज ही हुआ है, लेकिन आपको आज पता नहीं चलेगा, आपको 2-3 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कितना है? 2 to 8 weeks उसका इंक्यूबेशन पीरियड. उसके बाद में पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है.
Now organism develops resistance to the chemotherapeutic agents. Now let's see the classification of anti-tubercular drug, which is a very important part. ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली देखो. So anti-tubercular drug or drug used in the tuberculosis, they are classified as a class first and class second drug, class first and class second drug, or class first line drug or second line. They are also known as a standard drug or reserve drug. ठीक है. नाउ क्लास वन ड्रग, क्लास फर्स्ट ड्रग जो होता है, माउस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप. क्लास फर्स्ट ड्रग और दे आर आल्सो नोन एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट. क्लास फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और फर्स्ट लाइन एजेंट, दे आर आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड ड्रग. ठीक है. क्लास फर्स्ट को क्या बोलते हैं, क्लास फर्स्ट ड्रग जो है उसको फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड ड्रग्स भी बोलते हैं, याद रखो. सो क्लास फर्स्ट, दे आर आल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन एजेंट और स्टैंडर्ड ड्रग्स. ओके. नाउ दिस क्लास फर्स्ट ड्रग जो है, they will have high efficiency against the mycobacterium tuberculosis and they will have a less toxicity. less toxicity मतलब वो efficiency उसका mycobacterium को kill करने का ज्यादा है, लेकिन toxicity जो है humans को उसका कम है. मतलब they will have high efficiency against the mycobacterium but less toxicity to the humans, okay, or host. So वो उसमें कौन से ड्रग आते हैं आपकी, उसमें भी दो क्लास होता है, एक बैक्टीरिसाइडल एक बैक्टोस्टेटिक. ओके. सो क्लास फर्स्ट ड्रग विल हैव लो टॉक्सिसिटी एंड हाई एफिशिएंसी अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. And again they are divided into further two classes, bactericidal and bacteriostatic. Bactericidal means those which can kill the bacteria, bacteriostatic means those which can prevent the growth only. So bactericidal कौन से, isoniazid, rifampicin, streptomycin, pyrazinamide and okay. So remember isoniazid, rifampicin, streptomycin and pyrazinamide, these are the bactericidal class first. Bacteriostatic, for example, ethambutol, thioacetazone, these are the class first bacteriostatic. Now class second drug. So in case of class second drug, they are also known as reserve drug or second line drug. Class second और second line drug और reserve drug. Reserve क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका बाद में देते हैं. फर्स्ट लाइन ड्रग पहले यूज करते हैं और इनको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है. अगर उनको रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, बाद में सेकंड लाइन ड्रग देना है. अगर सेकंड लाइन ड्रग आपको पहले ही देंगे और उनको रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, तो आपके पास ड्रग अवेलेबल ही नहीं रहेंगे. तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो पहले देते हैं, और सेकंड लाइन ड्रग जो है उनको टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है. सो दे आर आल्सो नोन एज लेस efficiency, high efficiency, high toxicity drugs. For example, in case of second class, you have bactericidal drugs like capreomycin, kanamycin, amikacin, and fluoroquinones like your ofloxacin, then your moxifloxacin, like that, ciprofloxacin. Then next one is the bacteriostatic. In second class, bacteriostatics are nothing but the ethionamide, cycloserine and clopazimide. ये क्लासिफिकेशन याद रखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन. सिंगल ड्रग should not be used for tuberculosis as this leads to development of resistance rapidly. कि अगर आपने एक ही ड्रग यूज किया है for the treatment of tuberculosis, तो उसको immediately resistance develop हो जाएगा and वो ineffective हो जाएगा. So that's why you don't have to use single drug. So that's why the treatment of tuberculosis involves the use of कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. ठीक है. एक या दो ड्रग का कॉम्बिनेशन या फिर तीन चार ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. सो नेवर, सो सिंगल ड्रग शुड नॉट नेवर बी यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, आयनेज, आइसोनियाजाइड कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल ड्रग. इसको भी डेवलपमेंट होता है रेजिस्टेंस. बट तो नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ये कैसे, सो कैसे कंफर्म करेंगे. So there is one diagnostic test for tuberculosis known as a Mountox test. इसके बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूछा है. So what is Mountox test? It is a diagnostic test for your tuberculosis. Mountox test is a standard procedure for determination of whether a person is infected or not for the tuberculosis. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक, इसमें क्या करते हैं आप, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें एक प्रोटीन आइसोलेट किया होता है. सो प्यूरी, इट इज नोन एज अ, इट इज अ लोकल रिएक्शन टू द ट्यूबरक्यूलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. ट्यूबरक्यूलिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये जो मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसका एक प्रोटीन निकल के, वो प्रोटीन आइसोलेट करके वो यूज करते हैं, और उसको क्या करते हैं, आपको इंजेक्ट करते हैं. तो आपको इंजेक्ट करने के बाद क्या है
आपको चेक करते हैं बाद में 48-75 आवर्स के बाद में, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे कोई आपको सूजन हो गया या फिर रेडनेस हो गया, दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव reaction. Okay, so one-top test is nothing but the standard procedure for determination of the whether person is infected with a mycobacterium or not, कि आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए एक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉल्ड मॉन्टॉक्स टेस्ट. इसमें क्या है, it is a local reaction to the tuberculin purified protein derivative. It is injected into your skin to check the individual सेंसिटिविटी टू द ट्यूबरकुलर प्रोटीन. अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो मतलब आपको इन्फेक्शन है. सो पॉजिटिव टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय लोकल इरिथेमा आफ्टर 48 टू 75 आवर्स. मतलब ये जो प्रोटीन है इसका इंजेक्शन होता है, ये आपको इंजेक्शन दे देंगे और वहाँ पे अगर आपको 48-75 आवर्स में आकर वहाँ पे एट द साइट ऑफ इंजेक्शन आपको अगर सूजन हो गया, रेडनेस हो गया या फिर वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो गया, so that is the positive test. Positive test means you have infection, okay, of tuberculosis. Next one is we'll see the first drug known as isoniazid. So individual anti-tubercular drugs. First one is isonicotinonic acid hydrazide derivative known as INH or isoniazid. So याद रखो isonicotinonic acid hydrazide ये chemically. So it is a drug of choice for prophylaxis of tuberculosis. Only drug of choice for prophylaxis of tuberculosis. Prophylaxis means prevention. अगर टीबी का प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए कौन सा ड्रग है, आइसोनियाजाइड. इसके बारे में देख लेते हैं आप. सो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल एंड पोटेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. ये बहुत सस्ता होता है, इफेक्टिव होता है और पोटेंट है. अनलाइक द रिफाम्पिसिन does not eliminate the persisters. Isoniazid is not useful in the persisters. Persisters क्या होता है मैंने बोला आपको. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो इट विल इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड इन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बेसिलस जो होता है उसमें एक माइकोलिक एसिड नाम का केमिकल, दैट इज अ इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका सेल वॉल है, उसका एक कांस्टेंट होता है नोन एज माइकोलिक एसिड. सो दिस आइसोनियाजाइड विल इनहिबिट द synthesis of mycolic acid in the mycobacterium, and that's why there is a suppression of formation. And again also because of inhibition of mycolic acid formation in the cell, bacterial cell, so the mycobacterial cell wall is not, mycobacterium का cell wall जो है उसका faulty synthesis होता है या फिर वो उसका defective synthesis होता है. Again also this isoniazid will suppress the formation of DNA and RNA in the mycobacterium and also inhibits the various oxidative mechanism in the mycobacterium. So this isoniazid is extracellular as well as intracellular. It is effective in the extracellular as well as intracellular tubercular infection. It is also known as extracellular or intracellular tuberculocidal drug. मतलब ये इनसाइड द सेल को भी माइकोबैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो गया तो आउटसाइड द सेल है तो भी इफेक्टिव है, इनसाइड द सेल है तो भी इफेक्टिव है. मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग. अभी ये जो आइसोनियाजाइड है, सो आइसोनियाजाइड इट इज अ प्रो ड्रग एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय माइकोबैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्साइडेज. माइकोबैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्साइडेज ये जो एंजाइम है ये आपके ऑर्गेनिज्म में होता है, माइकोबैक्टीरियम में होता है, तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा. प्रोड्रग है ये कौन, आइसोनिकोटिनिक एसिड जो आईएनएच है आपका आइसोनियाजाइड, वो इट इज अ प्रोड्रग. सो इट विल बी एक्टिवेटेड बाय माइकोबैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्साइड. जो भी एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा वो एक्टिव मेटाबोलाइट दैट विल इनहिबिट द वन एंजाइम that is responsible for the synthesis of mycolic acid. Now absorption, distribution and metabolism, elimination. Are you getting the mechanism or not? mechanism समझ में आया नहीं? Hello. So now absorption, distribution, metabolism and elimination. उसका absorption, distribution, metabolism, elimination. The drug is well absorbed from your GIT. Okay. Absorption is comparable by both oral and IV routes and it can penetrate into saliva, milk, pleural fluid, CSF. Drug is useful in the meningitis also. So intracellularly macrophages, necrotic centers. मतलब यहाँ पे absorption होगा और इसका जो distribution है, penetration है वो है अच्छा. मतलब सलाइवा में भी पेनिट्रेट करता है, मिल्क में, प्लूरल फ्लूइड्स, देन CSF, देन मैक्रोफेजेस एंड नेक्रोटिक सेंटर. नेक्रोटिक सेंटर मतलब जहाँ पे टीबी का इन्फेक्शन हो गया वो सेल मर जाएंगे, ठीक है,
और नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल का डेथ हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो नहीं होगा ना, डेथ होने के लिए डेड सेल को थोड़ी ही ब्लड सप्लाई होता है, नहीं होता ना, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये पेनिट्रेट करता है। दिस आइसोनियाजाइड इज मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय एस्टाइलेशन रिएक्शन, एस्टाइलेशन इन द लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा इसका एस्टाइलेशन की, और पेशेंट्स होते हैं, सो because it is metabolized by acetylation reaction, patients are divided into two types, slow acetylators and fast acetylators। कि जो होते हैं ना रेसेस, जैसे आपका जापानीज हो गया या फिर स्कीमोज हो गया, सो जापानीज एंड स्कीमोज दे आर द रैपिड एस्टाइलेटर्स और रैपिड एक्टिवेटर्स। मतलब ये क्या करेंगे कि आइसोनियाजाइड का मेटाबॉलिज्म क्विकली करेंगे, क्योंकि इनमें जेनेटिकली एंजाइम्स होते हैं, जेनेटिकली rapid accelerators. So Japanese and Eskimos, they are known as rapid accelerators, and rest of the others are the slow accelerators। मतलब क्या होगा, जापानीज और स्कीमोज में अगर ये डोज आइसोनियाजाइड देंगे तो वहाँ पे जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा उनमें, तो इसका डोज आपको क्या करना पड़ेगा। और स्लो एस्टाइलेटर्स जो होते हैं, स्लो एस्टाइलेटर्स, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डोज कम करना पड़ेगा, ठीक है। देन ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द कॉन्जुगेशन एज अ कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ उसका कॉन्जुगेशन होता है और बाद में एक्सक्रीट होता है। आइसोनिकोटिनिल हाइड्राजोन बाद में, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद में, एस्टाइलेशन के बाद में आइसोनिकोटिनिल हाइड्राजोन, ये उसका प्रोडक्ट है एस्टाइलेशन का, और बाद में उसका ग्लाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा और वो एक्सक्रीट किया जाएगा। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज अ कॉमन इन द स्लो एस्टाइलेटर्स। जो फास्ट एस्टाइलेटर्स होते हैं, जिसको फास्ट मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, उनमें पेरिफेरल न्यूराइटिस एज अ एडवर्स इफेक्ट कम आता है एज कंपेयर टू स्लो एस्टाइलेटर्स। जो स्लो एस्टाइलेटर्स होते हैं उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस का एडवर्स इफेक्ट है, इसका किसका, आइसोनियाजाइड का, तो वो ज्यादा आता है। देन एडवर्स रिएक्शंस और एडवर्स इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शंस लाइक ड्रग फीवर, मलेशी, देन स्किन इरप्शंस, lymphoadenopathy, jaundice, scene stimulation, psychotic behavior, psychic disturbances can cause ataxia, muscle twitching, and paresthesia, stupor, and toxic encephalopathy. These are the CNS adverse effects. Now, main adverse effect of this isoniazid is the peripheral neuritis. पेरिफेरल जो नर्व्स है उसका इन्फेक्शन कर देगा, इसका इन्फ्लेमेशन कर देगा। पेरिफेरल न्यूराइटिस लीड्स टू anesthesia, paresthesia, burning, then pain, along with the sensory disturbances. Peripheral neuritis can be prevented by giving the pyridoxine. विटामिन B6 अगर देंगे तो उसका पेरिफेरल न्यूराइटिस क्योर हो सकता है। It is a peripheral neuritis is the adverse effect of your isoniazid and it can be treated by giving pyridoxine. Pyridoxine देते हैं उसमें। आगे along with this, optic neuritis is also there. Optic neuritis leading to atrophy may develop. Hepatitis is a more common in the old patient and children. याद रखो आपको यहाँ पे पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, all these are the adverse effect of your isoniazid. Then isoniazid can cause liver toxicity and should be monitored for the then miscellaneous miscellaneous symptoms include dryness of mouth, epigastric distress, urinary retention in the male, decrease in the metabolism of phenytoin and should be used not be used in the combination। मतलब ये ड्रग जो आइसोनियाजाइड phenytoin के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करना है। को इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखो, मतलब ये साइकोसिस जैसे सिम्टम्स दिखाता है आपको। कॉमन रिएक्शन तो है एडवर्स रिएक्शन, जैसे ड्रग फीवर, स्किन रिएक्शंस, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह, वो तो कॉमन है। लेकिन सीएनएस स्टिमुलेशन करता है, साइकोटिक बिहेवियर करता है आपको, देन टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी करता है। ठीक, उसके बाद में पेरिफेरल न्यूराइटिस इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। पेरिफेरल न्यूराइटिस या तो पेरिफेरल नर्व का इन्फ्लेमेशन करेगा, इसको ट्रीटमेंट के लिए पिरिडोक्सिन, विटामिन B6 आपको देना पड़ेगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस भी करेगा आपको, हिपेटोटॉक्सिक भी है, हेपेटाइटिस करेगा। It can cause dryness of mouth, epigastric distress and all that. It is contraindicated in along with the phenytoin, याद रखो। Now next drug is rifampicin. So it is a semi-synthetic derivative of rifamycin B and it has a activity against the Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. तो Mycobacterium leprae के against भी effective है, तो it is also used in the leprosy. And it is also effective in the Staphylococcus. It has a broad spectrum. It is a broad spectrum macrolide and lincomycin.
as like as a broad spectrum. आपने देखा है रिपम्पिसिन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज which leads to stoppage of expression of bacterial gene. It's bacteriostatic and acts against both extracellular as well as intracellular parasite. मतलब इसका मैकेनिज्म याद रखो आप, इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे होगा? उसका रेप्लिकेशन होगा डीएनए का। रेप्लिकेशन होने के बाद उसका क्या होगा? रेप्लिकेशन होने के बाद इमीडिएटली उसका जो है पोस्ट रेप्लिकेशन मॉडिफिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन के बाद में जो सुपर कॉइलिंग होता है डीएनए का, वो रिलीज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डीएनए का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बाद में वो डीएनए मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या फिर वो डीएनए का आरएनए बनेगा, उसको बोलते हैं डी आरएनए पॉलीमरेज। उसका रोल है वहाँ पे। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो कौन बनाएगा? डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म आरएनए एमआरएनए फ्रॉम योर। एट दैट टाइम एमआरएनए होगा, उसके बाद में उसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बाद में प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे रिपम्पिसिन क्या करता है? सो इट विल इमिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, which leads to stoppage of protein synthesis and expression of bacterial gene. So this rifampicin is bactericidal against both intracellular as well as extracellular organism. Okay, so it is effective against tubercular bacilli resistant to other standard drug. कि ड्रग को अगर रेजिस्टेंट है तो उसमें भी ये इफेक्टिव है। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द परसिस्टर्स, जो डॉर्मेंट फॉर्म होता है बैक्टीरिया का, परसिस्ट फॉर्म, ठीक है ना, उसमें भी इफेक्टिव है। एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। Absorption is good from GIT. Food will decrease the 80% drug is protein bound. It is metabolized in the liver. It is metabolized in the liver to one active metabolite known as a desacetylrifampin. Desacetylrifampin. Desacetylrifampin है वो active metabolite है, and this will undergo intrahepatic circulation. मतलब ये मेटाबोलाइट बनेगा लीवर में, और फिर से ये यहाँ पे आएगा, किसमें? बाइल में आएगा, फिर से इंटेस्टाइन में आएगा, फिर से वहां पे एब्सॉर्प्शन होगा, फिर से लिवर में जाएगा, उसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। नाउ दिस रिपम्पिसिन इज अ पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, मींस इट विल इंड्यूस द एंजाइम्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। के लिए जो एंजाइम्स होते हैं लिवर में, उसको इंड्यूस करेगा। उसको इंड्यूस करने के कारण जो दूसरा ड्रग है उसके साथ में देंगे, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। इट इज अ पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। एडवर्स रिएक्शन क्या है इसकी? स्किन रैश, डायरिया, एटेक्सिया, डिजीनेस, jaundice, leukopenia, and thrombocytopenia, acute hepatic renal failure, allergic reaction including shock and flu-like syndrome. Less important है। Most important adverse effect क्या है? Orange red coloration of urine, feces, saliva, sputum, tears and sweat. तो ये ड्रग अगर आपने लिया तो आपका यूरिन जो है वो क्या होगा? ऑरेंज रेड होगा, रेड कलर होगा, या फिर ऑरेंज कलर का यूरिन। सो ऑरेंज कलरेशन ऑफ यूरिन, आपका जो पीसेस भी ऑरेंज होगा, सलाइवा, स्पुटम, टीएस एंड स्वेट। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑरेंज कलरेशन ऑफ यूरिन इज कॉज्ड बाय रिपम्पिसिन, याद रखो। इट आल्सो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। नाउ यूजेस, इज यूज ऑफ दिस रिपम्पिसिन tuberculosis, it should be reserved drug for TB. It is not a first line drug, it is a second line drug, ठीक है। रिपम्पिसिन इज रिजर्व ड्रग फॉर टीबी। बाकी जो इन्फेक्शन है, जैसे यहाँ पे यूज है ना, स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन में भी यूज होता है माइक्रोलाइड लिंकोमाइसिन, लेकिन वहां पे ये ड्रग यूज नहीं करना है। ये ड्रग, इट इज अ सोनली अ ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इट इज अ रिजर्व ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। बाकी इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बाकी ड्रग यूज करो आप, मैक्रोलाइड, लिंकोमाइसिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Rifampicin is only drug reserved for tuberculosis. Also useful in the brucellosis, leprosy, serious staphylococcus. लेप्रोसी में यूज कर सकते हैं, लेप्रोसी एंड टीबी में। बाकी यूजफुल है ब्रुसेलोसिस, स्टेफिलोकोकल सेप्टिस्मिया, सीरियस स्टेफिलोकोकल सेप्टिस्मिया, then Legionnaires disease, Legionnaires disease, then prophylaxis of meningococcal infection of yeast influenza, most effective and fast acting drug in the leprosy. लेप्रोसी और टीबी में ही यूज करना है उसको, दूसरे में ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर इसको भी रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो फिर ड्रग ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट वन इज rifampicin. Next one is a rifampicin. It's a semi-synthetic derivative of rifampicin, and the spectrum is similar to rifampicin. It is a long-acting drug and it is converted into active metabolite known as a
25 डेस एसिटिल रिफापेंटिन, 5 डेस एसिटिल रिफापेंटिन, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. So we have discussed this streptomycin aminoglycoside antibiotic. Okay, so it is not absorbed orally, so you have to use this drug by parenteral route as an injection, which is a painful, and it is a bactericidal drug rapidly multiplying in the is a bactericidal in the rapidly multiplying organism only. Rapidly multiplying mycobacterium tuberculosis है उसमें यूजफुल है, ठीक है. इट इज इफेक्टिव इन द neutral pH in the wall of tuberculosis cavity. It does not penetrate into macrophages and caseous material. मैक्रोफेजेस ने बैक्टीरिया को एनगल्प किया है, माइक्रोबैक्टीरिया को, तो उसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एनगल्प मैक्रोफेजेस ने फैकोसाइट किया, लेकिन वो मरता नहीं है, वो पैसल है, वहीं पे जिंदा रहता है, तो वहां पे भी उसको मारना है, तो वहां पे वो इफेक्टिव नहीं है. इट इज द ओनली नॉन हिपेटोटॉक्सिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, इट इज ओनली नॉन हिपेटोटॉक्सिक ट्यूबरकुलर ड्रग, एंड एब्सोल्युटली इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में उसको यूज नहीं करना है, ठीक है, याद रखो. ओनली अगेंस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पेसिलेंट. ये जो ड्रग है, इट इज नॉट मतलब हिपेटोटॉक्सिक नहीं है, प्रेगनेंसी में इसको यूज नहीं करना है. इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. इट इज इफेक्टिव ओनली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर पेसिलेंट. This one is a pyrazinamide. Chemically, this pyrazinamide is related to thiosemicarbazone and nicotinamide. Now, effective only against the TB of human type. अगर मतलब ह्यूमन जो बोवाइन जो होता है, वो बोवाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसमें इफेक्टिव नहीं है ये. ऐसे इफेक्टिव है आपके ह्यूमन इन्फेक्शन में, ह्यूमन टीबी में, ठीक. तो इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द TB of human type resistant to the streptomycin. INS. Isoniazid streptomycin का रेजिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ह्यूमंस में, इसमें ये इफेक्टिव है. Ineffective against the bovine and atypical form of tubercular bacilli. In combination with the streptomycin and isoniazid, pyrazinamide exert a potent sterilizing effect on the tuberculous lesions. जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने के बाद जो सेल का डेथ होता है, वहाँ पे जो लेशन होता है, उसमें इफेक्टिव है ये पायरेजिनामाइड अलोंग विद द आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. बोला है कि ट्यूबरकुलर ड्रग जो है यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में, सिंगल ड्रग यूज नहीं करते, ठीक है. फॉर प्रोफिलाइसिस आइसोनियाजाइड कैन बी यूज्ड अलोन. इंट्रासेलुलर ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. उसका मैकेनिज्म क्या है इसका? inhibit the synthesis of mycolic acid. Mycolic acid is a important chemical for Mycobacterium tuberculosis for the synthesis of its cell wall. सेल वॉल सिंथेसिस करने के लिए माइकोलिक एसिड लगता है उसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की. उसको इनहिबिट करेगा कौन? पायरेजिनामाइड. अगेन मैंने बोला है आपको, दूसरा ड्रग भी है आपका सोनियाजाइड, वो भी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करता है, याद रखो. रिफॉर्मपिसिन क्या करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा. कि मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक ड्रग का, कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई द ड्रग व्हिच विल नॉट इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस. तो उसमें आपको एक ड्रग का लिस्ट देंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना आना होता. याद रखो कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर कौन है? पायरेजिनामाइड है आपका, आपका आईएनएच है, आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनियाजाइड है, एथाम्बेटोल भी आता है. तो pyrazinamide is a prodrug and it is converted into active metabolite known as a pyrazinoic acid. Pyrazinoic acid is the active metabolite of pyrazinamide and it will inhibit the bacterial synthesis of mycolic acid. मतलब it is a prodrug. It is converted into pyrazinoic acid which will inhibit the synthesis of mycolic acid in the mycobacterium. The drug is metabolized in the liver by deamination. ज़्यादा कुछ important नहीं. Adverse reactions: hepatitis, metallic taste in the mouth, then sulfurous fluctuations. सल्फरस मतलब सल्फर के बाद, सल्फर लेने के बाद में जो ये होता है आपका स्किन इरप्शन, उसको बोलते हैं. मेटालिक टेस्ट होगा, हेपेटाइटिस होगा, अर्थाल्जिया, एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, जॉन्डिस, सेंसिटिविटी रिएक्शंस, डिसकलरेशन ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी. याद रखो, डिसकलरेशन ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी और ब्राउन कलर. Hepatitis increase the serum level of uric acid, contraindicated in the patient with the liver disease.
Morphazinamide. Morphazinamide is the most potent drug. It is a derivative of pyrazinamide. Next one is ethambutol. Ethambutol, it is a dextroisomer of 2-ethylene diamine dibutanol. Levoisomer is also levoisomer is inactive against the TB. Ethambutol is a dextroisomer. Dextroisomer is effective. Isomer is 2-ethylene diamine dibutanol. Isomer is ineffective. Dextroisomer यूज होता है टीबी में. Ethambutol is a dextroisomer. Levoisomer is ineffective in the TB but has a same adverse effect as like effective against the mycobacterium resistant to isoniazid streptomycin ethambutol. Isoniazid streptomycin के रेजिस्टेंट में अगर बैक्टीरिया है तो उसमें ethambutol यूजफुल है. It is a bacteriostatic and primary resistant to this drug is not reported. Mycobacterium tuberculosis will not form a resistant. याद रखो आप. Mechanism of action of this ethambutol inhibit the synthesis of bacterial cell wall arabinosyl transferase. By inhibiting the arabinosyl transferase interfere with the mycolic acid incorporation in the cell wall. So it does not truly inhibit the synthesis of mycolic acid but it will prevent the incorporation of mycolic acid in the cell wall. Mycolic acid क्या है? It is an important component of cell wall of the Mycobacterium tuberculosis bacilli. ethambutol क्या करेगा? सेल वॉल है उसको इनहिबिट करेगा. सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा कार्बोनिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करके. कार्बोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है, एंजाइम सेल वॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इट विल प्रिवेंट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल. याद रखो. एंड दिस ड्रग इज एक्ट अगेन द rapidly multiplying organism in the wall of cavities. माइकोबैक्टीरियम है जो रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें ही यूजफुल है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन याद रखो सबसे मेन है इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक न्यूराइटिस. सो मेन adverse effect of your ethambutol is a retrobulbar optic neuritis prolonged use. Symptoms include blurring, then haziness, decrease in the visual acuity, then contraction of vision, visual field, poor color discrimination, central scotoma. टर्म्स से एक्सप्लेन करने का टाइम मेरे पास भी नहीं है. ये तो मैं बी अवॉइडेड इन द चिल्ड्रंस बिलो 8 इयर्स. पेरिफेरल न्यूराइटिस प्लस अभी ये पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो लेस कॉमन होता है इथामाइड में. अब सॉरी यस सोनियाजाइड में ये मोस्ट कॉमन है पेरिफेरल न्यूराइटिस. कॉमन एडवर्स इफेक्ट लाइक वोमिटिंग डायरिया वगैरह. नेक्स्ट ड्रग इज अ थायोएस्टेजोन. is a thiosemicarbazole derivative used in the low dose and it will act as a combination therapy with isoniazid. कंपेनियन में यूज करते हैं उसको थायोसेमिकर्बेन. एडवर्स रिएक्शन क्या है? स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, ड्रग रैश, टॉक्सिक इफेक्ट इंक्लूड्स ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस, किडनी एंड लिवर डैमेज. ठीक है. should not be used in the HIV patient due to severe skin reaction. Astazone. One is ethionamide. Is effective against the tubercular bacilli. Ethionamide. Tubercular bacilli resistant to other drug and has a broad effective in the infection due to atypical mycobacteria. मतलब बोवाइन टाइप का माइकोबैक्टीरिया जो बोवाइन देखो ह्यूमंस ओरिजिन और बोवाइन ओरिजिन. ह्यूमंस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है. ह्यूमंस में क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविन. It is also effective in the both case. Effective extracellular as well as intracellular organism. Reaction includes mild reactions such as rash, alopecia. Alopecia means absence of hair on your face. Manifestation like anaphylactoid shock may develop. Hepatitis, gynecomastia, menorrhea, then hypoglycemic episodes and pellagra-like symptoms. ये हो गए adverse effect of ethionamide. को आप इतने drugs है उतने. So one is a cycloserine. Cycloserine is a tuberculostatic antibiotic. It acts by inhibiting the synthesis of bacterial cell wall. Chemical analog of D-alanine. साइक्लोसेरिन क्या करेगा? इट इज अ ट्यूबरकुलोस्टैटिक एंटीबायोटिक. ये किल नहीं करेगा उसको, उसका ग्रोथ इनहिबिट करेगा. ठीक है. ये एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. बीइंग अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ डी-एलानाइन. अलानाइन डी-अलानाइन ऐसा लिंकिंग होता है सेल वॉल में. It is an analog. It has a similar structure with the D-alanine, and that's why it inhibits the cell wall synthesis. Okay.
So effective isoniazide resistant bacilli. यूजेस क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है उसके साइक्लोसेरिन के. Neurological, it has a limited use because of its toxicity. So neurological toxicity like muscular weakness, tremors, seized reflexes, ankle clonus, ataxia, slurring of speech, seizures. Seizures must मतलब epilepsy. Psychotic episodes effect like nervousness, psychotic effect, nervousness, insomnia, anxiety, psychosis, loss of judgment, lapses of memory. Memory lapse मतलब ना बात याद होना, फिर से भूल जाना, याद होना. Delusion, hallucination, suicidal tendencies. Cycloserine का main है suicidal tendencies. Should be avoided in the patient with the history of epilepsy, psychosis and renal impairment. ठीक है, adverse effect. इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये साइक्लोसेरिन, उसका सिर्फ मैकेनिज्म याद रखो. या तो आपका फ्लोरोक्विनोन्स और मैक्रोलाइड्स, एंड मैक्रोलाइड्स. Ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, lomifloxacin, sulfloxacin. They are active against the Mycobacterium tuberculosis, but they are second line drug. They are not a first line drug. Moxifloxacin is a bactericidal, but it is a hepatotoxic. Azithromycin, clarithromycin, they are also active against the Mycobacterium tuberculosis, but they are a second line drug. Dots, ये you might have, आपने सुना होगा एक टर्म डॉट्स. तो डॉट्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कोर्स. DOTS, डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, उसको बोलते हैं डॉट्स. आपने राहुल द्रविड़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके ऊपर द्रविड़ का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी के डॉट्स थेरेपी के लिए. डॉट्स थेरेपी क्यों करना है आपको, देखो इसमें कैसा होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द रेजिस्टेंट टू द मोस्ट ऑफ द ड्रग, कि इसका ट्रीटमेंट के लिए रेजिस्ट करता है वो कौन. तो वैसे क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत लंबा चलता है, मतलब महीना, 3 महीना, 2 महीना, 6 ऐसा लंबा ट्रीटमेंट होता है. तो पेशेंट कंप्लायंस जो है वो क्या है, कम होता है. कि आपको अगर 6 महीने तक दवाई लेना है तो आप क्या करोगे, आपके जान पे आएगी, आप रेगुलरली वो दवा लेगो नहीं. सो यू विल नॉट take a regular treatment for 6 months or 1 year. So instead of failure of therapy or because of failure of compliance or because of patient incompliance, so इससे अच्छा है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ले लो इफेक्टिव रेगुलरली, सो दैट देर विल बी इफेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम. Directly observed treatment short course. Instead of supplying the drug to the patient for self-administration at home, the patient is admitted drug. Patient is given the drugs under the supervision known as a DOTS therapy. This regimen useful for to ensure the high rate of compliance, high rate of treatment, increase the in the resistance of bacteria and prevention of relapse. The DOTS होता है. Is a mandatory when prescribed prescribed less often than daily. When drugs are prescribed to be taken daily regimen on the self administration basis. ना कि घर में अगर 6 महीने ट्रीटमेंट लेना है तो उससे अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, स्पेसिफिक पीरियड के लिए ट्रीटमेंट ले लो. दैट इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स नोन एज डॉट्स. See the treatment of leprosy. Now we'll see other form of tuberculosis. Tuberculosis infection किस अदर फॉर्म क्या है उसके टीबी के. टीबी इन्फेक्शन सिर्फ आपके लंग्स में होता है, इन्फेक्शन आपके बाकी एरियाज में भी हो सकता है. ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, ये फर्स्ट है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ टीबी इन द of brain, that is a tubercular meningitis. In that case you have to treat with isoniazid, then streptomycin, rifampicin and pyrazinamide combination use करना है आपको. Isoniazid, streptomycin, rifampicin and pyrazinamide. Is supplemented, pyridoxine supplement is given to prevent the peripheral neuritis of your isoniazid. It can be used टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा पेशेंट यूज करते हैं. ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलस लिम्फो, ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेंडिस, ट्यूबरकुलस लिम्फेंडाइटिस, ठीक है, ऑफन विद अटिपिकल माइकोबैक्टीरिया क्लास ऑफ जीआईटी, urinary tract, bones, joint, skin, larynx, intestine is also treated with routine chemotherapy. ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस
लिम्फेडेंटिस भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस बोन्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ट्रीटेड विद आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथामाइड। आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज नहीं करना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, याद रखो। केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ टीबी, प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ठीक है, के लिए आपको वैक्सीन आता है। जैसे कोरोना वायरस का प्रिवेंशन करने के लिए आपको वैक्सीन है, ठीक है, तो वैक्सीन मैंने भी लिया था परसों। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लिया। मेरा वैक्सीन हो गया तो मुझे बहुत बुखार वगैरह, चिल्स, बॉडी एक सब हो रहा था, हेडेक। प्रोफिलैक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या यूज करेंगे, वैक्सीन। कौन सी, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन इट्स अ ट्रिपल वैक्सीन, बैक्टीरिया कालमिटी ग्वारिन, इसका पूरा बैक्टीरिया कालमिटी ग्वारिन, ठीक है। क्या होगा, आपका बीसीजी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। मतलब ये वैक्सीन लिया आपने तो टीबी नहीं होगा आपको। बीसीजी वैक्सीनेशन हैज बीन शोन यूजफुल इन द negative school children in contact of cases to tuberculosis, person living in the area with high incidence of tuberculosis। मतलब आजकल तो वैक्सीन प्रोग्राम में ही है कि बच्चों को बीसीजी वैक्सीन देते ही देते हैं। चिल्ड्रन का प्रोग्राम है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट ज्यादा है, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन करना है आपको। The HIV patient become progressive in case of HIV patient become progressive extraction of helper T cell, T lymphocyte, that is CD4 cell, and impairment of B lymphocyte as well as macrophages। तो HIV पेशेंट में क्या होता है कि उसकी जो मैकेनिज्म है आपकी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उसको CD4 सेल भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट, उसमें काउंट कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होता है, जल्दी होता है टीबी का। are liable to undergo reactivation of old healed tuberculosis and to get a fresh infection। अगर आपको ऑलरेडी टीबी हो चुका है और बाद में एड्स हुआ है कि टीबी का आपको बेसिलाई डॉर्मेंट हो जाता है आपके बॉडी में, तो ये वो एक्टिव नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी कम होती है तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है। आपको एड्स इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपका टीबी का इन्फेक्शन आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। Chemotherapy of leprosy, so leprosy is nothing but the disease caused by mycobacterium leprae, ठीक है। Mycobacterium leprae की वजह से आपको लेप्रोसी हो जाता है। वो आपको लेशन ऑन द स्किन, आपके पूरे स्किन के ऊपर क्या होगा, जख्म होंगे, लेशंस होंगे, पेरिफेरल नर्व्स आपके डैमेज होंगे। लेप्रोसी यू माइट हैव सीन अ लेप्रोसी पेशेंट। अगर नहीं देखा है तो गूगल में जाके टाइप करो लेप्रोसी पेशेंट, आपको मिल जाएगा पेशेंट कैसा दिखता है, क्या के ऊपर उसका हो जाता है, जख्म हो जाता है, लेप्रा लेशंस, ठीक है। कामटे है बोल के, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है लेप्रोसी के अगेंस्ट में। किसी के पेशेंट को without organism can survive in the macrophages again and Schwann cells of nerve। This leprosy is also known as Hansen's disease. The Hansen disease because Hansen was the scientist who discovered this leprosy। There are 4 types of leprosy: lepromatous leprosy, tubercular leprosy, intermediate leprosy, and dimorphic or borderline leprosy। Lepromatous leprosy, lepromin test is negative. Tubercular leprosy, nerves are affected late, strongly positive lepromin test, both lepromatous leprosy and tubercular leprosy। In case of borderline leprosy, immunity is low and later turns into less leprosy। इसमें कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, इसमें सल्फोन्स यूज किए जाते हैं, लाइक डेप्सोन, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल सल्फोन, like rifampicin, clofazimine, ethionamide, then proionamide, like ofloxacin, minocycline and clarithromycin। So these are the drug used in the leprosy। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखो। इसमें एडिशनल ड्रग्स कौन से, जैसे बाकी के देखे आपने, रिफाम्पिसिन देखा है, वो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आता है सल्फोन लेप्रोसी। It is nothing but the derivative of diphenyl diamonodiphenyl sulfone। These are the like a sulfur drugs। These sulfones are like a sulfur drug। Mechanism is also same, ठीक है। drugs क्या करते हैं, they will block the de novo inside the body। de novo means inside the body, de novo synthesis of folic acid of the bacterium leprae, de novo synthesis of folic acid synthesis inhibitor, ठीक है। Actions of dapsone is blocked by पापा। अगर पैरामोनोबिट्रिक एसिड का लेवल ज्यादा है आपके बॉडी में तो डेप्सोन का एक्शन कम हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्टैटिक,
ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination, completely absorbed from GIT, metabolized in the liver, glucouronic and glucuronic acid conjugation, large quantity in the biles and milk. Sulfone gets concentrated in more in the leprosy in skin than normal skin. लेप्रोसी इन्फेक्शन अगर हो गया उसका स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादा होगा ड्रग reactions are like similar to the sulfonamides, anorexia, nausea, vomiting, there's conjunction syndrome, etc. etc. Psychosis. It is useful in the treatment of leprosy because of needed. Useful in the treatment of leprosy because of dose needed are very small. Amount of dose is enough. Useful in the dermatitis hypertiformis. Choice in the dermatitis hypertiformis. Okay, and drug of choice in the leprosy. Diphenyl diammonodiphenyl sulfone. One is a clofazimine. Clofazimine is a red pulper phenazine dye. Clofazimine is a dye. Okay, ये dye होता है, phenazine होता है, pulper dye. It is well absorbed orally, principally retained in the tissue, retained epithelial system, and concentrated in the macrophages of the skin. Bactericidal drug and acts by the mycobacterial DNA synthesis. It is also anti-inflammatory property. It has a, तो इसको याद रखो कि क्लोफेजेनामाइन क्या करता है, inhibit the mycobacterial DNA synthesis. बस इतना याद रखो और याद रखो ये it is not a it is a purple phenazine dye. क्या है उसके pain, diarrhea. They will impart a reddish black hue the skin of patient. ब्लैक स्किन के ऊपर एक इरप्शन बनाएंगे पेशेंट की. लेप्रा रिएक्शंस, ठीक है, पेशेंट्स व्हिच ऑकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेप्रोसी इज कॉल्ड एज लेप्रा रिएक्शन. मतलब लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के दौरान क्या लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के दौरान एक रिएक्शंस आता है उसको बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस. तो वो टाइप के होते हैं. टाइप फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप इंक्रीज्ड इरिथ्रेमा, स्वेलिंग, एक्जिंग लीजन्स एंड टेंडर पेरिपेलर. मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान ड्रग के कारण जो रिएक्शंस आते हैं पेशेंट में उसको बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस. दैट इज द पेशेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, क्या है टाइप्स बिकॉज ऑफ द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इंक्रीज्ड इरिथेमा, स्वेलिंग ज्यादा होगा, रेडनेस आएगा, लेस में ज्यादा पेन होगा, पेरिफेरल नर्व्स का भी पेन होगा. लेप्रा रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इरिथेमा, नोडोसम, लेप्रोसम and it is because of the amino cooperation. ठीक है, याद रखो कि सिर्फ लेप्रा रिएक्शन होते हैं टाइप 1 टाइप 2. This was today's lecture. This was the lecture and in the afternoon we will see